औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने इस पेपर का फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए थे। ये इसका फ्रंट पेज आपके सामने है। ये अक्टूबर नंबर 2024 पेपर है 1-1। तो वी डिड लास्ट Sunday first 10 questions, and then now we will start from the question 11 onward. This is front page of this paper. And now I'm going towards question 11. This is question 12. I think 12. 12, kana? 11. 11. Did we completed this question or not, Ali? Sir, no. Chale. Now find out the midpoint of this. This carries 1 mark. You can simply give the answer. Can you tell me the formula? Sir, x y1 plus y2, x1 plus x2 over 2 or y1 plus y2 over 2. Now substitute the values. What is x1? Sir, 2 and x2 is 5. So this will become 3.5. Yes. Then y1. 4 and minus 2. So this will become 2. 2 over 2, that is 1. The midpoint is 3.5 and 1. Next, gradient of the line AB. What is the formula for gradient? y2 minus y1 over x2 minus x1. G. Put in the values here. Minus 2 minus 4 over 5 minus 2. Sir, 6 over 3. Gradient is -2. That's it for this question. Now for the next question. That is question 12. Tell me the answer. One mark. It carries 2.75 multiplied by minus 4. 2.75 multiplied by 10 to the power -4. Yes, you are correct. 2.75 into 10 to the power minus. Yes. Okay, next. B part. First, simplify these two. 1, 2 twos are 4. So shift the powers upward. So this will become 0.5 into 10 to the power 4 minus -5. 4 minus -5. So 0.5 into 10 to the power 9, right? So when Yes. you shift the power towards right side, then the power decreases or increases?
Decreases. डिक्रीज, माइनस, राइट को मूव करे तो पावर माइनस होती है। तो आंसर इज 5 into 10 to the power 8. Now you have to do this mentally. First कहता है गिव योर आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर। पहले इसको आप इम्प्रॉपर में लिखें। 2 होल 1/5 का इम्प्रॉपर क्या होएगा? Sir, 11/5. 11/5 divided by 3/4. Next step. Sir, uh, invert this fraction. 4/3. So by multiplication, 44/15. yes, 44/15. What is the mixed answer? 15 twos are 30. 2 whole 14/15. Is it clear? Yes. Next. Question 14. G. What in a part? Write 360 as a product of its prime factors. What are the prime factors of 360? Sir, 3, 2, and Start from 2 always. These are the prime factors of 360. Is it clear? Is it clear? yes. Okay. B part, find the smallest positive integer n such that 360 n is a cube number. यानी कि you have to tell the number to which we multiply by 360 and then the answer is a cube number. 360n. 360 2. multiplied by unknown number n, g. Then it will become a cube number. Yes. Look at the prime factors of 360 that are 2 power 3 and 3 power 2 multiplied by 5. Yes? But we Yes. want to convert 360n into a cube number. So every cube number's prime factors have power 3 or multiple of 3. Multiple of 3 का मतलब है कि अगर 2 power 3 है तो this is cube number 8. This is 2 का cube हो गया ना, 8 is a cube number, right? Yes. Similarly, if there is 2 power 6, so this is also a cube number. This will become 64. So this is the 4 power 3 cube number. Clear? Yes. Similarly, we will make these powers divisible by 3 by multiplying extra number. Here we will multiply
a 3 extra for making it to a power 3, right? Yes, sir. To which number we will multiply here? हम्म ये 5 पावर 1 है ना, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? सर 2 से। 5 पावर 2 से मल्टीप्लाई करें। तो दीज आर एक्स्ट्रा, 5 स्क्वायर और 3 दीज आर एक्स्ट्रा। सो n is equals to 3 multiplied by 5 square, that is 75. Did you get it? यस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, हाँ जी। A sector of a circle with angle 60 degrees has the arc length 4 pi. Find the area of the sector. What is the formula for the arc length? Hmm. सर थीटा इंटू 8 इंटू पाई ओवर 180। This is the formula for arc length. Your angle is value of arc length he has given. So 4 pi will become here equals to your angle x degree is 60 over 360 multiply by 2 pi r. So with the help of this formula, we will find the value of r, because value of r is not given in the question. So using arc length, we will find the value of r. This pi will be cancelled out with this pi, and this 0 will be cancelled out with this 0. 6 1 is 6, 6 6 is 36, and this 2 will be cancelled out with 4. This is 2. Now do cross multiplication. Your R will be 12 centimeters. Did you get it? यस सर। Now, for area of the sector, वो कह रहे हैं in terms of pi. So you will not put the value of pi. So area of sector, बोलेंगे formula area of sector is equals to pi r square. Now your x degree is 60. This is 360. I think your this area is weak. और r is 12, तो r स्क्वायर है तो 12 स्क्वायर। बाय सिंप्लीफिकेशन 0 कैंसिल्ड आउट, 6 6 36, तो ये आपके पास आ गया पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 144। 12 का स्क्वायर 144 है। अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो यू कैन राइट इट स्क्वायर एज 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 6 2s are 12, 12 2s are 24. Area is 24 pi. Got it? यस। ओके जी, नेक्स्ट नोट आप नोट कर रहे हैं ना साथ साथ? जी सर। नेक्स्ट इज
ऐसे रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप उसको दोबारा से देख भी सकते हैं। Now the next question. This is out of syllabus. This matrices are not in your syllabus now in 2026 onward. Look at this. The diagram shows the lines this. Part A, region R is defined by these three inequalities. उसे तीन inequalities बोली हैं. X is equals to 2x plus 1. Sorry, y is equals to 2x, 2 is less than equals to 2x plus 1. So you can see that this line is intercepting y-axis at 1. So this is your y is less than equals to 2x plus 1. Got it? Now the next line, this line cuts y-axis at 2. तो y-axis पे कौन सी लाइन ये है, ये कट कर रही है 2 पे, तो इसकी ये वाली लाइन. अब वो कह रहे हैं कि थर्ड इनइक्वालिटी है y is greater than equal to -2. On the diagram shade and label the region R. तो -2 वाली लाइन ये है, y is equals to -2 की, we will draw this line and we will get the region by shading. Look at this. Do you know all this or not? Yeah, I do, sir. Okay. First, we will draw this line y is equals to -2 here. Y के -2 में से ये पास कर रही है, ये हो. ठीक है. अच्छा, अब आप देखें y इज लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 1. तो लेस देन का मतलब कि ये डाउन एरिया, दिस एरिया इज लेस. तो सो वी शेड द ऑपोजिट साइड. दिस इज द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये है. तो इसका अपोजिट साइड को हम इसकी शेड कर दें. अंडरस्टैंड? फॉर this is again less than, so we will shade the opposite side, greater side. This is greater side. This one. And this is greater than, the opposite side is downside, so greater than equal to है. तो इसलिए थिक लाइन है, तो ये आपका सारा हो गया रीजन. दिस इज द रीजन फॉर योर पार्ट ए आर. दिस इज आर होल. यहां से ऊपर से लेकर ये भी सारा रीजन में आ रहा है. ठीक है, ये सारा आपका रीजन है. गॉट इट? Yes. अच्छा, अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि द पॉइंट के -2 लाइज इन द रीजन आर वेयर के इज एन इंटीजर. राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के. कह रहे जी इसकी जो वैल्यूज ऑफ के हैं, पॉसिबल वैल्यूज, ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए, लिस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के. अब हमने यहाँ पे अजम्पशन करनी है कि लेट के इज इक्वल टू 0. रीजन में अगर आप के की जगह 0 पुट करते हैं, के आपका क्या है, एक्स है. यहाँ पे क्या, के क्या है आपका, एक्स है. ये पहली वैल्यू एक्स होती है ना. तो इफ वी पुट इन दिस के एंड के -2, वैल्यू ऑफ के 0 पुट करें अगर हम इसमें, तो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है 0 एंड -2, यही आता है. जी सर. आप इधर से देखें, अगर आपके पास x 0 है, तो x 0 यहाँ पे हुआ फिर, और y -2 ये वाला पॉइंट हो गया. तो दिस पॉइंट इज इन द रीजन. तो सो k की एक वैल्यू क्या हो गई, 0. अंडरस्टैंड? Yes. अब अगर k की वैल्यू मैं 1 पुट करूं
आप इसके अंदर, इस पेयर के अंदर के की वैल्यू 1 पुट करके बताओ क्या आंसर आएगा जी। 1 और फिर क्या आएगा? इधर 1 पुट करो ना, इधर 1 आ गया तो इधर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? सर 1 1 1 माइनस 1। 1 -1। तो look at this. This is your 1 and this is your minus 1. This point is also in the region. For the value of k 1, so this point also lie in the region. एक हो गई। आप इसको अगर 2 पुट करें यहाँ पे, इसकी जगह अगर आप 2 पुट करें तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा? 2 एंड 0। क्योंकि इधर 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0 होता है ना। यस। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये इस जगह। अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसलिए के की एक और वैल्यू क्या होगी? 2। तो ये तीन वैल्यूज will be the true for this point for the region. Now the next question. Question 18। ये टॉपिक आपने किया हुआ है। Fifty adults each take part in a quiz. The cumulative frequency diagram shows their scores. ये उसने cumulative frequency कर्व शो की हुई है। तो इसमें वो ये कह रहा है, यूज द डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। हाँ जी, बताएं इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? इंटर क्वार्टाइल रेंज टॉपिक का भूला थोड़ा। हम्म हम्म थोड़ा भूला हुआ टॉपिक है ये। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है जनाब, इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल्स टू Q3 - Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज equals to Q3 minus Q1. What is Q1? Q1 is a lower quartile. Q1 क्या है? ये लोअर क्वार्टाइल है। तो लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? 25% ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो उसका आपने लेना है 25%। तो जनाब आपकी कर्व कहाँ एंड हो रही है? 50 पे, ठीक है। तो जब 50 पे कर्व एंड हो रही है तो इसका 25% आप निकाल लें, क्या होएगा जरा मुझे बता दें। ये पेपर 1 है, जेन में रखिएगा। 50 का 25%, डोंट यूज कैलकुलेटर हियर। तो 25% ऑफ 50, Q1 is equals to 25% ऑफ 50। 0 0 से कैंसिल, 5 1 are 5, 5 2 are 10। So this is 12.5। सर 12.5। 12.5 के अगेंस्ट कर्व को ज्वाइन करें तो आई थिंक दिस इज 12.5, राइट। यस। तो 12.5 से इसको जब आप ज्वाइन करके यहाँ पे पहुंचे तो ये यहाँ पे आ गया इस जगह। इज इट क्लियर? You will do working like यस। this on the paper when you will have a question hard sheet in the examination. You will do working like this, ठीक है। तो count these. This is 20, so these are 10 boxes. So 20 divided by 10, so each box carries 2. So 2 4 6 8 10 12 14 16 and 1 17. Q1 is 17. Understand?
जी। इसी तरह Q3 75% of the frequency. Q3 is equals to 75% of the frequency. 75 over 100 multiplied by 50. 0 0 cancel. 5 2s are 10. तो ये आपका बन गया 37.5, राइट। यस। अब 37.5 को आपने इससे रीड करना है। मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। 37.5 ये आ गया जी। 37.5, दिस इज 37.5 ये। From here you will move towards the curve. तो ये भी मिड में ही आ रहा है, ठीक है ना। सिक्सटी टू, 64, 66 and 167. तो योर Q3 विल बी 67। तो जनाब Q3 आपका हो गया 67। 67, this is 67 minus 17, तो your answer is 50. यस। दिस इज इंटरक्वार्टाइल रेंज। आगे कह रहा है 20% ऑफ द एडल्ट्स। ये एडल्ट्स हैं 50 तक। 20% ऑफ द एडल्ट निकाल लें जी, क्या होएगा जी। 20% ऑफ एडल्ट। 0 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 10। 10 आ गया जी, 20%। एडल्ट्स विन अ प्राइज फॉर गेटिंग अ हाई स्कोर इन क्विज। इसका मतलब हाई स्कोर तो इस तरफ को होगा ना, इस तरफ को। यस। तो 20% हम ऊपर से लेंगे फिर, अब ठीक है ना, नीचे से नहीं लेंगे। 20% यूज द डायग्राम टू वर्क द मिनिमम स्कोर नीडेड टू विन अ प्राइज। अब जनाब 20% कर्व को मैं ऊपर से नीचे को मूव करता हूँ। तो 20% के लिए 10 है ना, ऊपर वाले 10। ये तो 10 फिर ये 40 पे आ गया, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आप अगर आए तो ये 40 पे आया। तो 40 से आप इस कर्व को ज्वाइन करें तो ये भी मिड में आता है यहाँ पे। तो वो मिनिमम स्कोर कह रहा है। तो ये किस में आ रहा है जी, इसमें आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ये मिनिमम स्कोर है। तो ये कितना हुआ जी, ये 2 का एक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 2 14। तो 74 and 1 75। The minimum score to win the prize is 75. Got it? यस। तो इधर फिर आपका आंसर आ गया जी 75। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं यूज द डायग्राम टू कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आपने फ्रीक्वेंसी टेबल अपने पास कॉपी पे नोट करना है, और फिर मेरे डायग्राम में आपके सामने करूंगा, तो आपने वो कंप्लीट करना है। बाद में फिर मेरे साथ पेपर के ऊपर कंप्लीट करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैं इसको रेस करता हूँ। हाँ जी।
लो जी, टेबल है आपके पास ये 0 to 20। स्कोर है जी 0 से 20। तो इसको हम यूं करते हैं, यहाँ से देख के तो साथ साथ स्क्रॉल करते जाएंगे तो हो जाएगा ये। 0 से 20 जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बनती है ये देखो। 1 मिनट पहले इसको बताओ, 0 से 20 कौन सी कितनी बनती है फ्रीक्वेंसी। ये है ना 0 से 20, ये तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है, बोलो जल्दी जल्दी। सर 14। 0 से 20, हाँ जी 14। तो इसके फर्स्ट कॉलम में फिर हम लिख देंगे 14। टाइम कितना रह गया है, 6 मिनट है। आज लगता है पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जरा थोड़े थोड़े वर्किंग वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया जी 14। 20 से 40। 20 to 40। 20 to 40, हाँ जी। ये तो था 14। सर 27। ये है जी 14। और 40 के अगेंस्ट कितना आ रहा है, ये है ना 40। ये तो आ रहा है 25, 26, 27। तो 27 में से 14 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि वो नीचे वाले का है फ्रिक्वेंसी। तो ये फिर क्या बनेगा, 27 - 14 क्या आएगा। सर 13। 30। अल्लाह आपका भला करे। चलो जी नेक्स्ट। 40 to 60। 40 to 60, हाँ जी। 40 to 60। सर 35 - 14 या 27। 60 का क्या था, ये था ना। 60 का 35 और -27 क्या आया, 8। यस। लो जी, ये हो गया 8। लगता है कंप्लीट हो ही जाएगा। 60 to 80। स्पीड मारना जरा। 60 to 80। 60 to 80। 80 का है जी 42। हम्म। हेलो। यस सर। 42 यस। में से कितना 35 माइनस करो, क्या आया। सर 7 आता। 7 आ गए। लो जी, ए हो गया 7। टाइम थोड़ा रह गया। ये 8, चलो जी। टेबल हो गया कंप्लीट। अब जरा इन सबको ऐड करके देखो 50 बनता है। हम्म। जी सर बनता। गुड हो गया। क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19, जरा जल्दी जल्दी कर लो, कितने में, 2 मिनट है फौरन। हम्म। फार्मूला बोलो फटाफट। सर x इज इक्वल्स टू k ओवर वाई। स्क्वायर एक्स इज y इक्वल टू स्क्वायर के रूट ऑफ y ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर। अब ये दोनों सर वैल्यू सर पुट करके स्क्वायर रूट ये निकालो। स्क्वायर रूट, अच्छा। स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करो इसमें फटाफट, के की वैल्यू निकालो। एक्स की जगह 2, के ओवर अंडर रूट 16। तो के इज इक्वल टू क्या सर आया? के 8 8। 8 अब दोबारा लिखेंगे फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू के ओवर अंडर रूट 1। तो योर एक्स इज 32, तो योर के इज 8 ओवर अंडर रूट 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? हम्म। अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। यस तो y is equals to 1/16 is the answer. That's it for today's video. And dear viewers and students, we could hardly complete up to the question 19, inshallah. Next, or on Monday, I will try to complete this paper. So please like, share, and subscribe this video. Thank you. Thanks a lot. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज अली। सर